Okay. Last time we have learned how to read from the CSV file. Let's take a look. See, first of all, CSV is a comma separated value file. Now, the thing is, we have type of text file, we have type of binary file. Then why another type is there, CSV? So CSV basically uh, the type of we can store the data in CSV file in the table format. Okay, data which is stored in the CSV file are always in the table format. CSV file is easy to create and read. It's very easy to create and read from the CSV file. We can simply create like this. In Notepad, we just have to write the all the values separated by the commas. Like this, we can create the comma separated value. When you open this comma separated value CSV file in Excel, it will be automatically converted into the table. And nowadays, most of the websites, most of the uh, डेटाबेस वेबसाइट में जहाँ डाउनलोडिंग का प्रॉब्लम आता है तो यही CSV फॉर्मेट यूज करते हैं बिकॉज अनदर फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल यूज मोर डेटा देन CSV file. So CSV file is easy to handle and it's widely used today. So from reading the CSV file, we have to create the reader function. Okay, from reader function we can read the file as in or in particular variable, and then from particular variable just read single row. See, in CSV file name class marks ये totally एक रो बनती है. See, Rinku 1290 is a row, Vinu 1188 it's a first row. ये सब rows होती हैं. Clear? It is termed as a row. Okay, now how to read from the CSV file? Simple. First, you have to import a library called CSV. This is the by default library. By default library, you can say this. This type of library is the uh, this type of library is in the collection of PSL, Python Standard Library. ये PSL के कुछ libraries हैं, पर Python has provided some library inbuilt. From that, one of the libraries is CSV. Okay, for working with CSV, we need to import CSV. Same way as you did in text file and binary file, you need to open, 1 minute, you need to open the file in read mode. Here is the path of CSV file. Generally, we are putting the CSV file same folder in where we have where we have that Python file. तो हम पूरा path नहीं लिखते हैं. Just we have relative path to be stored here. Okay. For that we are not using. For that we are not using that full path. Okay. So we are generally use relative path. So but here is प्रॉब्लम आएगी जब आप फुल पाथ भी लिखोगे ना तो यू विल गेट द एरर यहाँ पे डबल स्लैश होना चाहिए हर जगह पे. यहाँ पे नहीं दिया है पर हम अगर यूज कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ रही है. तो बेटर टू यूज डबल स्लैश. ये मैंने आपको टेक्स्ट फाइल सिखाते वक्त सिखाया है कि कैसे फुल पाथ अगर आपको देना है, हाउ टू डू दैट. यू हैव टू पुट डबल स्लैश एट द एवरी लेवल. ठीक है. C colon double slash then user colon double slash then admin double slash document double slash student.csv. You have to open that file in read mode. Okay, after opening the read mode, you have to read that file. Okay, so for that you just create one reader variable. Here it is written CSV reader. You can create any variable. हमें क्या करना है, पूरी की पूरी फाइल रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर करके रखनी है. तो हम यहाँ पे वेरिएबल कोई भी लेंगे. यहाँ पे लिया हुआ है CSV reader इक्वल्स टू CSV.reader f क्या है, फाइल जो हमने ओपन की वो फाइल इन रीड मोड. ओके, व्हाट जो भी फाइल में डेटा था किस में आ गया, CSV रीडर में. अब उसको हम रो वाइज मतलब लाइन वाइज ओके पर्टिकुलर रिकॉर्ड वाइज उसको एक्सट्रैक्ट करना है. इसलिए हमने एक और वेरिएबल बनाया कॉल्ड रो. सो फॉर रो इन CSV रीडर मीन्स ईच लाइन ऑफ CSV रीडर you have to print row. Okay, then f dot close. Very simple to understand. Okay, so whatever written in the C here it is written in student.csv. When you
write this program, this type of output you will get. ओके तो आप देख सकते हो हर रो के लिए एक लिस्ट बनी है. क्लियर? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यही कुछ दूसरे एग्जांपल्स हैं. प्लीज गो थ्रू दिस फाइल. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. फाइल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, याद नहीं रहता है तो दोबारा एक बार मैं सेंड कर दूंगी. पाइथन सप्लीमेंट करके आपके पास एक पीडीएफ फाइल होगी, उसमें ये सब दिया हुआ है. दिस इज न्यूली एडेड टॉपिक विच इज नॉट देयर इन लास्ट ईयर. टिल लास्ट ईयर तक ये टॉपिक नहीं था. आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप की फाइल थी, बाइनरी फाइल एंड टेक्स्ट फाइल. इसी साल इन लोगों ने CSV फाइल ऐड किया है, इसलिए आपके पास कोई बुक में इसका डिटेल आपको नहीं मिलेगा. टू गेट द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक यू हैव द सप्लीमेंट. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. अगर नहीं मिल रहा है, खो गया है, तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगी. इन दिस सप्लीमेंट यू गेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSV. आपकी टेक्स्ट बुक है प्रीति अरोरा हो या सुमिता अरोरा हो, उसमें टॉपिक नहीं होगा. यू विल गेट इट फ्रॉम हियर ओनली. Okay, this is newly added topic this year. Okay, now today we are going to learn write in CSV file. तो पहले मैं आपको अपना वो फोल्डर दिखा दूं. आई एम सेविंग ऑल द फाइल्स ओवर हियर इन क्लास 12. आप देख सकते हो यहाँ पे 2 CSV फाइल बनी है, एक एम्प्लॉय वाली, ठीक है, और एक स्टूडेंट वाली और एक टेस्ट फाइल. 3 फाइल है CSV फाइल. अब मैं क्लास 12.csv फाइल बनाऊंगी. ठीक है, क्लास 12.csv फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगी. जो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्रिएट नहीं करके रखी. बाय राइटिंग द प्रोग्राम ऑफ पाइथन फाइल, तो क्या होगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो पहले CSV फाइल बनेगी, फिर उसमें डेटा राइट होगा. सी आई एम सेविंग दिस पाइथन फाइल. जो अब मैं बनाऊंगी मैं इसी में सेव करूंगी. पर आप देख सकते हो इसमें हमें जो फाइल चाहिए क्लास 12.csv यहाँ पे नहीं है. ओके ओके, तो नाउ वी आर लर्न टू राइट इन CSV फाइल. जब हम फाइल में राइट करते हैं तो फाइल नहीं भी बनी हुई होगी तो पहले फाइल क्रिएट होगी और उसके बाद उसमें राइट होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if possible on your video also, so I can see your faces. Yes, ma'am. Okay, now Yes, to write in a file, we have 2 function, write row और नीचे एक फंक्शन आएगा write rows. 2 है, पीछे s लगता है. write row and write rows. ठीक है. फॉर राइटिंग इनटू द फाइल, जैसे आपने रीड किया था तो CSV.reader यूज किया था. अब आपको राइट करना है तो आप क्या यूज करोगे? CSV.writer फंक्शन. वेरी इजी. ठीक है. और CSV.writer फंक्शन का ही एक मेथड है राइट रो. उसके थ्रू आप सिंगल रो आप फाइल में राइट कर सकते हो. क्लियर? अंडरस्टूड? अब देखो पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं खुद करूंगी भी. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. ओके, सी दिस. फर्स्ट वी हैव टू वर्क विद द CSV, देन वी हैव टू इंपोर्ट CSV इंपोर्ट किया. उसके बाद फील्ड करके हमने एक लिस्ट बनाई है. ये फील्ड क्या है? आपके फर्स्ट रो ऑफ द टेबल. आपको क्या क्या सेव करना है? नेम, क्लास, ईयर, परसेंटेज. किसके बारे में? अब उसके टाइटल्स तो देने पड़ेंगे ना. जो भी टेबल में आप डेटा सेव करोगे, आपने लिखा है रोहित 12 2013 19, पर ये सब क्या है? इसकी फर्स्ट रो तो आपको देनी पड़ेगी. तो इसके लिए हमने फील्ड करके यहाँ पे बना हुआ है, वो लिस्ट बनाई है. उसमें नेम, क्लास, ईयर और परसेंटेज इस तरह से डेटा डाला हुआ है. ठीक है. अब उसके बाद जो भी टेबल में इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालनी है वो हमने लिख दी कि नेम रोहित, क्लास 12, ईयर 2013, परसेंटेज दिस. नेम शौर्य, क्लास 11, ईयर 2004, परसेंटेज 82. नेम दीप, क्लास 12, ईयर 2002, परसेंटेज 80. समझ आया? तो ये हमारा हेडिंग फाइल हुआ. जैसे मैं आपको एक CSV फाइल दिखाऊं. ओपन विथ एक्सेल करते हैं. वेट. ऐसे नहीं हो रही है तो ऐसे स्टार्ट करते हैं.
सी आई एम ओपनिंग दैट फाइल, स्टूडेंट था ना नाम। तो ये जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स है ना, ये आपका क्या होगा, फील्ड्स होंगे। क्लियर। और ये उसका सारा डेटा। तो हमने फील्ड करके क्या बनाया है, वी आर गोइंग टू इंसर्ट 4 थिंग्स, नेम, क्लास, ईयर एंड परसेंटेज। और उसके रोज कुछ ये बनेंगे, रोज का डेटा भी दे दिया। नाउ हमने फाइल नेम ले लिया कि मेरे फाइल का नाम होगा dmarks.csv। आप जो भी रखना चाहो, हमारा पाथ चेंज हो जाएगा, हमारा पाथ क्लास 12 फिर नेम आएगा। क्लियर, दैट वी विल डू, डोंट वरी। अब यहाँ पे विथ ओपन फंक्शन लिखा है, नहीं याद रहता तो ओपन फंक्शन से हम फाइल को राइट करेंगे। फाइल नेम लिखा। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, सी ओवर हियर, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू दिस सिंगल डॉट्स। देखो अगर आपने न्यू लाइन में सिंगल डॉट्स रखे, सिंगल क्या बोलते हैं इसको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या बोलते हो, ओके अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा, हाँ इन्वर्टेड कॉमा अगर सिंगल यूज किया है ना, तो जब आप डेटा दोगे ना तो भी सिंगल सिंगल ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने डबल लिया है तो जब आप डेटा लिख रहे हो तो वहां पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करो। अब ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है मैं समझाती हूँ, पहले इतना समझो कि न्यू लाइन में अगर आपने सिंगल कॉमा दिए हैं तो यू हैव टू राइट द होल डेटा विद द सिंगल कॉमा ओनली। अगर यहाँ पे आपने डबल कॉमा यूज किया है देन यू हैव टू यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा while इंसर्टिंग द रोज, मतलब जो रोज में आप वैल्यूज लिखोगे वो डबल कॉमा में ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पाइथन जहां से उसको सिंगल कॉमा फिनिश होता हुआ मिलेगा ना, वो इट कंसिडर द न्यू लाइन, मतलब वो फिर नेक्स्ट फील्ड में जाने देगा। मतलब उसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म मिला तो वो समझ जाएगा ये नेम का डेटा है, फिर यहाँ से स्टार्ट यहाँ से खत्म मिलेगा तो वो समझ जाएगा क्लास का डेटा है, देन ईयर। तो उसको इस तरह से हमने न्यू लाइन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा से बताना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होता है /n, पर हमारे केस में न्यू लाइन कैरेक्टर क्या बन रहा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। that's why we have to specify over here new line is equals to single quote। देखो बीच में स्पेस है, मेक श्योर। क्लियर, डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखूंगी आपके सामने। फिर हमने एक वेरिएबल लिया csv.writer किया। अब फाइल में f पास किया, f मतलब फाइल ओपन की वो वेरिएबल f, और डेलीमीटर कॉमा किया। अब डेलीमीटर कॉमा क्यों यूज किया क्योंकि हमारे सारे फील्ड डिवाइड किससे हो रहे हैं, कॉमा से, इसलिए जहां जहां उसको कॉमा मिलेगा इट विल बी कंसिडर एज अ न्यू, मतलब नेक्स्ट फील्ड। समझ में आया, तो यहाँ पे डेलीमीटर कॉमा भी यूज करना आपको कंपलसरी है। राइटिंग द फील्ड्स द कॉलम हेडिंग वंस, अगर आप पहले आप क्या करोगे, कॉलम हेडिंग डालोगे, इसलिए हमने राइट रो किया फील्ड, तो ये वाला राइट हो गया फाइल में, नेम, क्लास, ईयर, परसेंटेज, ये फाइल में राइट हो गया। फिर ये सारी रोज अगर आपको फाइल में राइट करनी है तो यू हैव टू यूज फॉर लूप। ओके, सब कुछ भूल जाओ, फिर से हम ये प्रोग्राम ट्राई करते हैं। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट इन अ CSV फाइल विथ न्यू अनदर फाइल। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, import CSV। क्लियर, देन हम एक फाइल नेम दे देंगे। फाइल नेम चाहो तो डायरेक्ट ओपन फंक्शन में लिखो या तो अलग से स्पेसिफाई करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो फाइल नेम इज इक्वल्स टू हम दे देंगे d:\/ क्लास 12, खाली कैपिटल स्मॉल देख लूँ यहाँ पे है, क्लास 12, उसमें मुझे नाम देना है क्लास 12.csv दे रही हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारा बन गया फाइल नेम। ओके, अब हम फाइल को ओपन करेंगे विथ राइट मोड, तो f इज इक्वल्स टू ओपन। फर्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, फर्स्ट क्या डाला है मैं, फाइल, तो हमारा फाइल नेम तो दिया हुआ ही है, इसलिए वी आर राइटिंग फाइल नेम। ठीक है, अब कौन से मोड में ओपन करना है, मोड है राइट मोड, और उसके साथ हमें न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू लाइक दिस। स्पेस बिना वाला है कि स्पेस वाला है, बिना स्पेस है। ओके, नाउ
next work is create the variable with the csv dot writer method. तो हम w ले लेंगे, w is equals to csv, w is equals to csv dot writer मेथड से हमने फाइल को ओपन किया. csv डॉट राइटर मेथड से हम क्या पहले फाइल को ओपन करेंगे, देन विल पास द फाइल नेम, देन डेलीमीटर इज इक्वल्स टू क्लियर. उसके बाद हमें हेडर रो लिखेंगे. हेडर रो लिखो या फर्स्ट रो लिखो, जो भी आपको इजी रहता हो, याद रहता हो, वो आप लिख सकते हो. उसके लिए हम लिस्ट बनाएंगे. देन 2 ही फील्ड ले रही हूँ मैं फिलहाल, इमरजेंसी टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए. से स्टूडेंट नेम एंड स्ट्रीम, ठीक है, 2 ही ले रहे हैं हम. क्लियर. तो मैंने फर्स्ट रो बना दी, मुझे 2 ही चीज़ें एंटर करनी है, स्टूडेंट नेम एंड रो. ये सिंगल रो है तो मैं राइट रो फंक्शन से यूज़ कर सकती हूँ. तो मुझे सिंपल लिखना पड़ेगा w डॉट राइट रो. मैं फर्स्ट रो को फाइल में राइट कर दूंगी लाइक दिस. ओके, देन फाइल को क्लोज कर देते हैं. एक प्रिंट मैसेज डाल देते हैं कि अगर सब कुछ आगे सही रहा तो फाइल क्रिएटेड का मैसेज आ जाए, इसलिए हमने फाइल क्रिएटेड डाल दिया. देन गुड टू क्लोज, देन f डॉट क्लोज फंक्शन यूज किया. ओके, लेट्स सेव इट. क्लास ट्वेल्व डॉट csv ऑलरेडी हमारे पास नहीं है. ओके, csv writer. ओके, लेट्स रन इट. फाइल क्रिएटेड. अब चेक करें कि फाइल बनी है कि नहीं. तो हम जा रहे हैं, लेट्स गो इन डी ड्राइव, क्लास 12. देखो क्लास 12 डॉट csv फाइल हमारी बन गई है. क्लियर. हम इसको ओपन करके देखते हैं. अगर इस फाइल में कुछ भी नहीं होता ना तो साइज में 0 बाइट दिखा था, पर यहाँ पे 1 बाइट दिखा रहा है, मतलब डेटा तो गया है अंदर. तो सी स्टूडेंट नेम एंड स्ट्रीम करके हमने जो 2 फील्ड बनाई थी वो डेटा इस पर राइट हो गया. क्लियर. अभी हम रोज बनाते हैं. ओके, तो इधर आएगा रोज वाला, तो हम बाकी के रोज बना देते हैं. सो रोज इज इक्वल्स टू, हमेशा लिखने का तरीका ऐसा रखो, लिस्ट को स्टार्ट कर दो और नीचे आके लिस्ट को क्लोज कर दो, भूलोगे नहीं. उसके बाद एंटर करके यहाँ से लिस्ट बनाना स्टार्ट करो लाइक दिस. फर्स्ट एलिमेंट इज से ऐश्वर्या, स्ट्रीम है कॉमर्स. ठीक है, ये एक लिस्ट बन गई. उसके बाद डेलीमीटर कॉमा देना पड़ेगा. ओके, फिर हम नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे. दूसरे में से हिमांशु, स्ट्रीम में आएगा साइंस. इस एक सेकंड एलिमेंट बन गया, कॉमा डालना मत भूलना क्योंकि हम CSV फाइल लिख रहे हैं. देन थर्ड विज प्रीतिश, उसकी स्ट्रीम है साइंस. ठीक है, अब मुझे कोई और दूसरी रो नहीं डालनी तो मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डालूंगी. क्लियर. ये हमारी रोज बन गई. अभी रोज मल्टीपल है तो फॉर लूप यूज करेंगे. नहीं करना है तो रोज मेथड भी है हमारे पास, बट इफ यू वांट टू यूज रो मेथड तो फॉर लूप यूज करनी है. नहीं यूज करना है रो मेथड तो आपको रोज मेथड यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, रोज मेथड यूज करनी पड़ेगी. तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, फॉर आई इन रोज. क्यों रोज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने वेरिएबल यहाँ पे रोज बनाया है इसलिए. क्लियर. फॉर आई इन रोज. क्या हुआ प्रीतिश, क्रैश हो जा रहा है. क्रैश हो गया मैम ऑटोमेटिक, पता नहीं कितना गंदा अब आंदा नहीं, अब बहुत दूर नहीं हो. कहाँ से आप अटक, 1 सेकंड में हुआ क्रैश. ओके ओके, मतलब ठीक है. देखो फॉर आई इन रोज हम क्या करेंगे, w डॉट राइट रोज, राइट रो नॉट रोज, राइट रो आई. क्लियर.
और फाइल क्रिएटेड तो है ही, लेट्स सेव इट, रन इट, फाइल क्रिएटेड, लेट्स चेक इन फाइल कि डेटा गया कि नहीं, ओपन विथ नोटपैड, यू कैन सी डेटा गया है फाइल में। क्लियर? CSV राइटर थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी बढ़ गई हैं, इसलिए मैंने आपको दो बार समझाया। एक बार मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखा था उसके थ्रू समझाया, और एक बार आपने न्यू पूरा फ्रेश न्यू प्रोग्राम बना के दिखाया। अभी आपने रो मेथड यूज करी, अभी हम रोज मेथड से ट्राई करेंगे। तो रोज मेथड से ट्राई करेंगे तो मैं ये कमेंट में रख देती हूँ। मल्टीपल रोज है तो सिंपली यू कैन यूज इट w डॉट राइट रोज, राइट रोज, नाउ s है, और डायरेक्टली आप लिख दोगे रोज वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर दोगे, सेव इट, रन इट, लेट्स चेक। देखो यहाँ से मैं उड़ा देती हूँ, ऐसा लगे आपको कि मैम ये तो पहले से ही था, तो लेट्स सेव इट। अब फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सी अभी इतना ही है फाइल में, अभी इतना ही है। अब हम वो रोज को ऐड करते हैं, तो अगेन आई एम रनिंग इट, फाइल क्रिएटेड, चेक इन फाइल, सी डेटा इज install in the file, मतलब write in the file. Clear?